आर्किड इंटरनेशनल स्कूल ने दिल्ली एनसीआर में इमेजिन हब खोला। यह एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे रचनात्मक और व्यवहारिक तरीके से सीख सकते हैं, जो उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रसिद्ध प्रोफेसर एम पंत, जो आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रो वाइस चांसलर और फैकल्टी हैं, ने आर्किड गुरुग्राम सेक्टर 55 कैंपस में आधुनिक स्टेम, एस्ट्रोनॉमी, परफॉर्मिंग एवं विजुअल आर्ट्स लैब का उद्घाटन किया है। ये प्रयोगशालाएं छात्रों को सोचने, समझने और रचनात्मक बनाने में मदद करेगी। इससे नए नए प्रयोग करने एवं उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रगतिशील शिक्षा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, जो अंतर्राष्ट्रीय के 12 स्कूलों की एक प्रमुख श्रृंखला है, ने आज खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स, मैक कोडिंग, टिंकरिंग, नृत्य, रंगमंच, संगीत, बुनाई और छपाई, मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग जैसे विषयों की प्रयोगशालाओं से युक्त एक अभिनव अमेजिंग हब लॉन्च किया है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन आर्किड इंटरनेशनल स्कूल की उपाध्यक्ष शिक्षा सुधा राजमोहन और प्रोफेसर एम पंत, पूर्व प्रो वाइस चांसलर आईआईटी कानपुर, MLNR इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद और वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय कनाडा के विजिटिंग फैकल्टी द्वारा किया गया है। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी प्रेममयी मुदिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते पूजनाश्रित पादयुगे जय जय हे कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। Welcome to the music lab at Orchid, sir. And colorfully designed so that we can give a real-time exposure to the students. You can see that there are so many equipments that students can be acquainted with and given a real-time exposure so that they can increase their creativity and productivity. So we have a performance. Small performance. Can you? Welcome everyone. I am Kavyanjali from Create Food. Today I am going to present a song in your presence. I used to lie back down and hold my breath, scared to rock and roll to make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess I had forgot I had a choice. Then she pushed me past the breaking point. I stood for that again. By an audience and having the backdrop. Right. So these were the inspiring. At Orchid, sir. At Orchid, we are providing the Creative Lab students their situations which sometimes they don't feel to express in their class because of the confined room. Now we have provided a proper setting over here so that they can freely enjoy themselves, express themselves, because as we all know, expressing is very important. The child has something in his heart and he's not expressing, how can we understand the child? So here at Orchids, we are giving real-time exposures with enhanced room and vibrant clarity, so that child not only just acts and performs over here, but he also enjoys the setting. And today we are going to learn about the beautiful artwork of weaving in the textile production. In weaving, we take two threads or yarns and interconnect them to form a piece of cloth. As we know that India is the largest producer in the whole world in terms of weaving industries. And guess what? The state is Gujarat. It's Gujarat. Gujarat produces 25% of texture all over India. It also offers high quality products. And these textile industries provide occupation to millions of the people all over the world. Thank you so much, sir. My name is Nirja Mahanshetty from grade 7.
7 and I'm going to introduce you to what we use. This instrument is called a tapestry loom. We use it to this is a fiber yarn, this is a coarser yarn. We use them both to weave, as you can see here. Now my friend Akanksha will just tell you what these tools are used for. Okay, so this is a comb and comb is used to adjust and settle the thread. So these are the basically tools, right? Yes, So you ma'am. use तो आज एक बहुत ही उल्लास और महत्वपूर्ण दिन है जहां प्रोफेसर कंवल, जो मेरे लिए तो गुरु ही रहे हैं, वो हमारे यहाँ आए हैं। ये जो 9 लैब्स जो एकदम नए और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक करिकुलम यहाँ पे स्कूल में बच्चों के लिए हम यहाँ प्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो इस लैब में जो खासियत है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने बात की सर से और सर ने ये बताया कि आज हमें लर्निंग को कायम रखने के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और बच्चों के अंदर न्यू लर्निंग के लिए क्षमता क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन लैब का भी यही मकसद है। आपने देखा होगा हर स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह के लैब्स तो बनते ही हैं, वो तो हम भी बनाएंगे। पर ये जो लैब्स हैं ये कुछ यूनिक तरीके से हम इसको लैब्स की जगह हम इसको इमेजिन हब का नाम दे रहे हैं। ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ के लिए एक डायरेक्शन है। इसमें हमने इस तरह के कुछ सीखने के लिए नई चीजें दी हैं जो बच्चों को कई नई चीजें दिखाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने जब सैर किया स्कूल के सारे लैब्स को देखा, तो म्यूजिक, डांस और थिएटर के लैब से शुरू किया हमने। वहां पे हमारा प्रयत्न ये खाली नहीं है कि बच्चों को म्यूजिक और डांस और थिएटर सिखाएं, लेकिन उनको हम एक ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां वो समझे कि ये जो कलाएं हैं वो कलाएं कल उनको अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि किसी भी मौके पे कोई भी इंसान कोई नई लर्निंग शायद नहीं कर पाता, लेकिन छोटे एज में हर चीज वो सीख सकता है। तो हमारी ये कोशिश यही है। और NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये भी कहती है कि बच्चों को हमें वोकेशनल स्किल्स स्कूल में सिखाना चाहिए। होलिस्टिक जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि ये वोकेशनल स्किल्स हम बच्चों को छोटे क्लासेस से ही शुरू कराएं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है लोगों को भविष्य के लिए तैयार करने का। हम अपने जमाने में अच्छे स्टूडेंट थे, तो हमारी अच्छाई कैसे दिखाई जाती थी, हम सब याद कर सकते थे। किताब में जो भी लिखा है बिना किताब देखे बता सकते थे। हम भी आपको बता सकते हैं पाई 3.14159.265, log पाई 0.4902, स्क्वायर रूट 2 is 1.414, स्क्वायर रूट 3। लेकिन आप मुझे भाई तो फिर आगे बताओ पाई 3.14 आगे क्या। तो दूसरी जो चीज थी कि ये था, इसका फायदा ये था कि तब सब लोग जानकार नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी। आप गांव में ब्रिज बना रहे हैं, आपको कोई फॉर्मूला चाहिए, भी आपको याद करना होगा। अगर आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, तो दवा माननी होनी चाहिए, इसके सिम्टम क्या हैं याद होने चाहिए। तो उस समय ये सब याद करना बहुत जरूरी था। पर अब जब तक मैं कहूँ 3.1 आप अपने मोबाइल से कहेंगे ये लो सब प्लेस का बता दिया हमने, अब बोलो। जब तक आपने डॉक्टर का इंटरनेट में सब देख लिया उन्होंने। आजकल लोग डॉक्टर इंटरनेट में ज्यादा देख के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब बदल गया। और पहले क्या था कि सोचना मना था। मैं आपको बताता हूँ अपनी सच्ची कहानी। बच्चों ने कहा मैं होशियार बच्चा था स्कूल में, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको अपना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी।
मैथमेटिक्स आप क्या नहीं बताएंगे, फिजिक्स आप क्या बताएंगे, केमिस्ट्री आप, एक इंग्लिश भी हम लोग नहीं बोल पाते थे, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं, एक जगह बोल सकते थे अपना, हिंदी में। हिंदी में उन्होंने कह दिया चरित्र निर्माण पर निबंध लिखो, और हमने लिख डाला। और इतनी डांट पड़ी कुछ हद नहीं, आपकी राय कोई नहीं पूछ रहा है, श्रीमन नारायण जी ने जो लेख में लिखा है वो बता